Okay, so the recording has started and Raman has written his attendance as well. Arjun, please put your name in the chat box so that it will be recorded as your attendance. Okay, so in the previous class we have seen how can we simplify the Boolean expression. So we have seen few of the methods, that is we can reduce it by using Boolean algebra. After that we have seen K-map method, and the last one I think we discussed Quinn-McCloskey method, right? So I don't know whether Quinn-McCloskey will be asked in the GATE examination or not, but still it is it's a good thing to know all the things, right? So today we are going to discuss about digital circuits. So I have given you introduction about digital circuits. There are two types of digital circuits. First one is combinational circuit and second one is sequential circuit. In combinational circuits we don't have a memory, like whatever output we are getting, it is purely result of the present input. Okay, so मतलब जो भी हमने input दिया है उसका ही हमें output मिलता है, right? But in the sequential circuits we have memory elements. So what does that mean? Like whatever output we are getting right now, that is effect of the present input as well as the past inputs, right? So we have a memory element. So in today's class we are going to discuss few of the combinational circuits. So I think I have given you the list of combinational circuits. Shardul has joined. Happy Diwali, Shardul. I hope you had a great Diwali this year. Yes, sir. Happy Diwali, sir. Thank you. Great. So today is Bhai Dooj as well. So I hope it isn't disturbing your schedule. Actually, I posted the link little late, so I don't know whether it disturbed your schedule or not. Okay, so whatever it is, so today we are going to discuss combinational circuits. So right, so कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में कौन से सर्किट्स आते हैं इसकी मैं एक बार लिस्ट यहाँ पे कर देता हूँ, राइट? सो फर्स्ट वन वी हैव एडर, second one we have subtractor, third one is multiplexer and demultiplexer, fourth one is encoder and decoder, and fifth one we have code converters. So the most important out of these five is this third one, multiplexer और demultiplexer में at least एक question तो आता ही है, and the question gives us 1 or 2 marks. We cannot say whether it will be asked for 1 or 2 marks, but there would be 100% one question from multiplexer and demultiplexer. Okay, having said that, we will start with the topic adder. So adder is basically what? It adds binary digits, or we can say bits, right? So यहाँ पे एडर के भी हमारे पास दो टाइप्स है, एडर के भी हमारे पास दो टाइप्स है. कौन से है वो? द फर्स्ट वन इज हाफ एडर एंड द सेकंड वन इज फुल एडर, राइट? सो हाफ एडर पहले हम सबसे पहले देखेंगे. सो हाफ एडर में हमें क्या करना होता है? इट एड्स बेसिकली, इट एड्स टू बाइनरी बिट्स. ओके, सो किस तरीके से ऐड होते हैं ये हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज वी हैव टू बिट्स, दैट इज ए एंड बी, एंड वी हैव सम एंड कैरी. सो ए बी के लिए मैं इनपुट दूंगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. सो 0 + 0 सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा. 0 + 1 सम 1 आएगा लेकिन कैरी 0 आएगा. 1 + 0 इज सम 1 कैरी 0, एंड 1 + 1 इज, यहाँ पे सम हमारा 0 आता है, कैरी 1 आता है. दिस इज बुलियन अलजेब्रा. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ. सो यहाँ पे हमें क्या करना है? सम के लिए एक के मैप बनाना है, कैरी के लिए एक के मैप बनाना है. तो मैं सम के लिए के मैप बनाता हूँ. अभी 2 वेरिएबल के मैप हमें बनाना है. ओके, सो लेट अस सपोज दिस के मैप इज फॉर सम. सो ए बी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और 0 1 0 1. जब ए और बी 0 0 है तो सम भी 0 है. जब ए 0 है, बी 1 है, ए इज 0 बी इज 1, देन सम इज 1.
A is 1, B is 0, sum is again 1, and A and B, if both are 1, then sum is 0. So this is the K map for sum. Okay, so we cannot make pairs or quad here, so we have to group this element individually. So ये ग्रुप बनेगा, ये दूसरा ग्रुप बनेगा. So इसके लिए हमारे पास क्या आएगा? इसके लिए हमारे पास आएगा, can you tell what should be the expression for this? Is it A bar B, right? Yeah, it's A bar B. And the second one we have is A B bar. ठीक है. So sum is nothing but sum is equals to A bar B plus A B bar. That means A XOR B. So this is for sum. Now for carry, we can similarly draw the K map. So carry के लिए जब मैं K map draw करता हूँ तो A B 0 0 1 1, तो A भी 0 है तो कैरी भी 0 है. A 0 B 1 तो carry 0. A1 B0 then also carry 0, and when A and B both are 1, then carry is 1, right? So what is this? Basically this is A into B. So carry के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आया वो है A into B. That's it. Now we have to implement this. We have to implement this by using logic gates. ओके, सो जो पहला सम का है उसके लिए तो हम एक XOR गेट यूज कर सकते हैं, सो दैट विल गिव अस A XOR B. एंड फॉर कैरी वी कैन यूज an AND gate, so AND gate will give us carry as A into B. Okay, so how do we draw this? So यहाँ पे एक XOR गेट रहेगा और ये जो मेरा इनपुट है ये है A and B. दिस इज A and B, और A XOR B यानी कि हमें मिलेगा सम, और A XOR B. और जो हमारा कैरी है इसके लिए हमें चाहिए AND गेट. सो AND गेट के लिए so this is A into B, or it is also called as C out, that is carry out, or we can say carry. So this is basically half adder. It adds 2 bits. Okay, so question will be asked, question will not be asked like what is the formula for sum A XOR B, ऐसा question नहीं आएगा. Okay, okay, Pranshu is again here. Good evening Pranshu, and very happy Diwali to you as well. Okay, so Pranshu, we discussed हाफ एडर. हमने हाफ एडर डिस्कस कर लिया है. हाफ एडर में जो सम होता है वो A XOR B होता है, और जो कैरी होता है वो होता है A multiplied by, or A and B, A into B, that is the carry. Okay, now for full adder. So full adder में क्या होता है? full adder में it adds 3 binary bits. Okay, so let us suppose we have 3 variables or 3 bits, that is 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0. After that we have 1 0 1 0 1 1, and lastly we have 1 1 1. Right. Okay, so this is not the correct one. Just let me make the corrections. Okay, so 6 should be written like this. So यहाँ पे क्या होगा देखो, अभी सम और कैरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. दिस इज सम, दिस इज कैरी, और सी आउट यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे कि सी और सी आउट हम डिफ्रेंशिएट कर पाए. सो दिस इज 0, कैरी भी 0, सम 1 कैरी 0,
सम 1 कैरी 0, सम भी यहाँ पे सम 0 आएगा, कैरी 1 आएगा, राइट। सो यहाँ पे 0 1 1 के लिए, 1 0 0 के लिए सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा, 1 0 1 के लिए सम इज 0, कैरी इज 1। आफ्टर दैट 1 1 0 के लिए sum is 0, carry is 1, and for 1 1 1 we have 1 plus 1 0 होगा, लेकिन 0 plus 1 1 ही होगा, and there would be 1 carry as well. So इस तरीके से हमें sum और carry मिल जाएंगे. So now अभी हमें क्या करना है, sum के लिए k map ड्रॉ करना है. So I will draw the k map here and I expect answers from you, like you have to find out the फॉर्मूला फॉर इट. ओके, सो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी सी मैंने दे दिया. दिस इज फॉर सम गाइस. ओके, 0 0 0 1 1 1 1 0. सो 0 0 0 के लिए सम तो 0 ही है, 0 0 1 के लिए सम इज 1, 0 1 1 के लिए सम इज 0, 0 1 0 के लिए सम इज 1, 1 0 0 के लिए सम इज 1, 1 0 1 के लिए इट इज 0, 1 1 1 के लिए इट इज 1, एंड 1 1 0 के लिए इट इज अगेन 0. तो मैंने यहाँ पे ये मैप कर दिया है. नाउ कैन यू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर दिस. इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सम का फॉर्मूला. कैन एनीबडी ऑफ यू फाइंड आउट? टेक आउट योर नोटबुक्स एंड डू द थिंग. ओके, सो कुछ लोग ऐसा करो, सम के लिए कैलकुलेट करो, कुछ लोग कैरी के लिए कैलकुलेट करो. व्हाट वुड बी कैरी? सो मैं कैरी के लिए भी एक के मैप ड्रॉ करता हूँ, तब तक तुम सम का फॉर्मूला लिखना. एज और बीज और प्लस सीज और, मतलब एज और बीज और सीज और एस इक्वल टू. ओ ओके, ए एक्स और बी एक्स और सी, राइट, ऐसा ऐसा बोल रहे हो ना? यस सर, यस सर. ओके ओके, ग्रेट. एंड फॉर कैरी, डिड यू फाइंड आउट फॉर कैरी? कैरी के लिए फाइंडिंग या प्लीज ट्राई. बाकी लोग भी ट्राई करो, प्रांशु, अर्जुन एंड शार्दुल. कैरी के लिए मैं के मैप ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे. सो दिस इज फॉर सम. कैरी के लिए this is A B C 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0. सो 0 0 0 के लिए कैरी तो 0 है, राइट. 0 0 1 के लिए कैरी क्या है, 0 0 1 के लिए कैरी अगेन 0. 0 1 1 के लिए क्या है, 0 1 के लिए कैरी 1 है. 0 1 0 के लिए 0 1 0 के लिए कैरी अगेन 0. 1 0 0 के लिए कैरी 0 है, और बाकी सब तीनों का भी एक है, 1 1 1. ठीक है, तो यहाँ पे सम के लिए रमन ने फाइंड आउट किया है. सम का जो फॉर्मूला है वो है ए एक्स और बी एक्स और सी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम. नाउ फॉर कैरी, व्हाट इट शुड बी guys? I hope others are finding too. एनीवन, कैरी के लिए कुछ मिला? यस सर, कर रहे हैं. या श्योर.
Yes, sir. AB plus AC plus BC. That's great. That's correct. ओके, सो किसी और का कोई आंसर था, कोई और बोलना चाहता था शायद? इज देयर एनीवन, कोई बोलना चाहता है? ओके, नो, ठीक है। सो कैरी आउट के लिए क्या है हमारे पास? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। सो अभी इन दो फॉर्मूलाज को आपको ड्रॉ करने के लिए कुछ मेहनत नहीं लगेगी, राइट? एक एक्स और ड्रॉ करना है, 3 इनपुट वाला एक एक्स और ड्रॉ करेंगे। सो उसमें क्या होगा? ए एक्स और प्लस बी एक्स और एंड सी एक्स और, ऐसा हो जाएगा, तीनों आ जाएंगे, राइट? और बाद में हमें क्या करना है? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी करना है। मतलब ए और बी के लिए हम एक एंड गेट दे देंगे, ए और सी के लिए एक एंड गेट रहेगा, बी और सी के लिए एक एंड गेट रहेगा, और लास्ट में इन तीनों के लिए एक और गेट रहेगा, ठीक है? सो इस तरीके से हमारा जो है वो डायग्राम बन जाएगा। नो, दिस वाज वेरी बेसिक थिंग कि हाफ एडर ऐसा होता है, फुल एडर ऐसा होता है, लेकिन गेट एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो नाउ फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज वी आर drawing a full adder, or we are constructing a full adder by using half adder. We are drawing a full adder by using half adders. Then how many OR gates will be there? तो क्वेश्चन क्या रहेगा? आप फुल एडर ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन किसकी मदद से? हाफ एडर की मदद से, और इसमें आपको OR गेट्स कितने लगेंगे? ओके, सो विल फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि हम फुल एडर को बाय यूजिंग हाफ एडर कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एक नाउ इस ये आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा सोच के मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ओके, आई एम नॉट ड्रॉइंग दिस। सो नाउ हमारा मोटो है, हमें एक फुल एडर ड्रॉ करना है, मतलब हमारे पास ए बी और सी ये 3 इनपुट्स है, ठीक है? तो हमारे हाफ एडर को सिर्फ 2 ही इनपुट्स होते हैं। सो दिस इज हाफ एडर बेसिकली, और इसका एक सम आता है, इसका एक कैरी आता है, राइट? तो ये ए है, ये बी है। सो ये रहेगा ए एक्स और बी, और ये रहेगा ए इंटू बी, राइट? तो अभी हमें सी को भी तो ऐड करना है, राइट? सी को भी ऐड करना है ना। सो सी कैसा आना चाहिए? सी एक्सॉर में आना चाहिए, ए एक्सॉर बी के, राइट? सो मैं यहाँ पे फिर से एक हाफ एडर लूंगा। सो ए एक्सॉर बी जो है वो एक इनपुट पे है, और मैं यहाँ पे एक सी दे देता हूँ, राइट? सो व्हाट इट विल गिव? इट विल गिव ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी. So this will be the sum which is expected from a full adder, right? तो इस तरीके से नाउ अभी हमारा कैरी क्या होता है? कैरी हमारा होता है ए बी इंटू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, राइट? सो डू वन थिंग, अभी इसका जो कैरी है, नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द कैरी ऑफ दिस। कोई बता सकता है कि इसका कैरी क्या रहेगा? जो सेकंड वाला हाफ एडर है ना, उसका कैरी क्या रहेगा? कैन एनीबडी गेस? देखो, पहला जो हाफ एडर है, सी दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग, पहला जो हाफ एडर है उसके 2 इनपुट्स थे ए एंड बी, तो उसका कैरी आया ए इंटू बी। अभी ये वाला जो हाफ एडर है इसके 2 इनपुट्स है ए एक्स और बी एंड सी, तो कैरी क्या रहेगा? सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, ए एक्स और बी को एज इट इज लिख दो। ओके रमन, डू यू वांट टू टेल द आंसर? आई होप दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? Yes, sir. Yeah. So this is the carry of second half adder. Now our motto is to get carry of what? Carry of what? Carry of full adder. तो full adder का carry क्या होता है? AB plus AC plus BC, right? So do one thing, अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सुनो अच्छे से। Put one OR gate here, एक OR gate यहाँ पे रख दो, okay, and give this input to this, and this AB
टू दिस। अभी अगर इन दोनों को तुम ऐड कर दोगे ना, इफ यू सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट इट लाइक सी आउट विल बी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ट्राई करके देख लो, ठीक है, इसको और इसको आप ऐड करके देख लो, यू विल गेट दिस आंसर ओनली। ओके, so now can you tell me how many OR gates are required to draw a full adder by using half adder? Now I think आपको थोड़ा सा एक आइडिया होगा। I expect answer from everyone। जिनको माइक ऑन नहीं करना है वो चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, और जिनको माइक ऑन करना है यू कैन स्पीक। How many OR gates will be required, guys? एक। Okay, this is a tricky one. Rethink, रमन, फिर से एक बार सोचो। या ग्रेट, इट इज वन ओनली। ठीक है, अभी और गेट तो एक लगेगा, एंड गेट कितने लगेंगे? हाउ मेनी एंड गेट्स? डू वी नीड इवन एंड गेट्स? एंड गेट्स की जरूरत पड़ती है क्या? हाउ मेनी एंड गेट्स विल बी रिक्वायर्ड, रमन? 0 इज इट? आई होप इट इज नॉट 0, तो नहीं है। आई थिंक पहला वाला जो हाफ एडर है उसमें एक एंड गेट है, और जो सेकंड वाला या यूजिंग हाफ एडर, जब हम हाफ एडर यूज कर रहे हैं ना, सो दैट मीन्स वी आर यूजिंग दोज गेट्स, इजंट इट? मैंने सिर्फ यहाँ पे हाफ एडर का एक बॉक्स ड्रॉ किया, सो दैट डज नॉट मीन्स कि या दिस, डिड यू गेट दिस? सो this half adder contains one XOR gate as well as one AND gate, first one also and second one also, right? So there would be two AND gate required, there would be two AND gates required। समझ में आया सबको? प्लीज टेल मी। शार्दुल, अर्जुन, did you get this? Yeah, okay, so the question is exclusively for Shardul and Arjun. How many XOR gates will be required? How many XOR gates? XOR gates, XOR, I'm talking about XOR gates। There would be two ना guys, there would be two only। पहले वाले हाफ एडर में 1 XOR रहेगा, दूसरे वाले हाफ एडर में दूसरा XOR रहेगा, that's it। तीसरा XOR है ही नहीं ना हमारे पास। The third one is OR gate, this is not XOR gate, right? So this is how the question might be asked। ठीक है, okay, that's great। now अभी the next thing जो है, we have to see 4-bit पैरेलल एडर, बाइनरी 4-बिट पैरेलल एडर। मतलब क्या होता है कि ये जो पैरेलल एडर है, अभी ये जो हमारे एडर है हाफ एडर एंड फुल एडर, सो ये 2 बिट्स को ऐड कर रहे थे, ठीक है। एक फुल एडर जो है वो 3 बिट्स को ऐड कर रहा था, लेकिन व्हाट इफ वी नीड टू ऐड 4 बिट्स, या फिर 4 मतलब 4 बिट्स के अगर 2 निबल्स जिसे हम कहते हैं, जो अगर 2 निबल्स को हमें ऐड करना है, so we need a separate adder for that, right? So how can we draw that? Let me just tell you। Okay, so first of all let us consider that A0, A1, A2, E3, these are 4 bits, and we have B0, B1, B2 and B3, so we have to add them parallelly। मतलब A3 में B3 ऐड होगा, A2 में B2 ऐड होगा, और A1 में B1 ऐड होगा, A0 में B0 ऐड होगा, राइट? सो इस तरीके से अगर हमें ऐड करना है, सो हाउ कैन वी डू दैट? सो लेट अस सपोज अभी यहाँ पे मैं पहले 2 बिट्स ऐड कर लेता हूँ। सो अभी 2 बिट्स ऐड करने हैं गाइस, मुझे सिर्फ A0 एंड B0 ऐड करने हैं। सो यहाँ पे मैं कौन सा एडर लगाऊंगा? विच एडर शुड आई यूज? विच एडर शुड आई यूज? ऑब्वियसली या आई शुड यूज हाफ एडर। सो यहाँ पे मैं हाफ एडर यूज कर लेता हूँ। ओके, सो हाफ एडर में हमें क्या मिलता है? वी गेट सम। तो मैं यहाँ पे, हम A0 और B0 को ऐड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे S0 लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ आई विल गेट 1 कैरी एज वेल हियर, तो कैरी भी मुझे मिलेगा, राइट? सो द नेक्स्ट एडर विल बी,
अभी जो मेरा नेक्स्ट एडर रहेगा उसमें ऑलरेडी A1 और B1 ये दो बिट्स तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ ये तीसरा वाला जो कैरी है वो भी मैं ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे फुल एडर लगाने की जरूरत पड़ेगी एंड देन आई विल गेट S1, मतलब जो इन दो बीट्स की जो समीशन है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलरली वी विल गेट वन कैरी हियर। सिमिलरली फिर से एक फुल एडर हम लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे A2 B2 एंड ये जो कैरी है ये फिर से ये ऐड हो जाएगा, तो विल गेट S3। सिमिलरली लास्टली वी हैव अगेन वन फुल एडर एंड इसमें भी हमें एक कैरी ऐड कर देना है। A3 और B3 को ऐड कर दो, you will get the element, this is not S3, this is S2 and this is S3 and this is C3 और C out भी जिसे हम कह सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ बाइनरी पैरेलल 4-bit एडर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे ड्रॉ करते हैं। ओके, सो अगेन द क्वेश्चन वुड बी, क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें कि लेट अस सपोज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट वन 4-bit parallel adder, so how many AND gates will be required? So ये एक क्वेश्चन रहेगा। so अगर हम इसी पैटर्न से जाएंगे, so how many AND gates will be required guys, can you tell me how many AND gates will be required? I'm asking about AND gates. Any idea? In complete circuit, sir. Yeah, in complete circuit, how many AND gates will be required in this circuit? Okay, so Shardul says it is 14. Any other answer? Any other answer guys? Raman, can you? Trying, sir. Okay. तो शार्दुल हाफ एडर में कितने एंड गेट्स लगते हैं? एक लगता है, राइट। इसमें एक ही एंड गेट रहेगा, A इंटू B जब हम करते हैं ना कैरी के लिए, तो वहीं पे एक एंड गेट लगता है। फुल एडर में कितने एंड गेट्स रहेंगे? फुल एडर में 3 एंड गेट्स रहेंगे, क्योंकि हमें AB प्लस AC प्लस BC करना होता है ना, तो यहाँ पे एक एंड गेट, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, मतलब 3 एंड गेट्स इसमें लगेंगे, 3 एंड गेट्स इसमें लगेंगे और 3 यहाँ पे लगेंगे। या इट्स 10, इट्स 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी OR gates will be required? How many OR gates? OR gates, how many OR gates? 3, बराबर। Yeah, correct. 3 AND gates, sorry, 3 OR gates will be required. Correct. Great. चलो, so what is our next point then? Then we have half subtractor and full subtractor. So half subtractor और full subtractor almost same ही है, same ही, like it is like adder and adder only. So लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो होता है फुल सब्ट्रैक्टर जो होता है, मतलब हमें 3 बिट्स का जब सब्ट्रैक्शन करना होता है A माइनस B माइनस C का, तो उसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, तो सब्ट्रैक्टर में भी हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर ये होते हैं। सो लेट अस सपोज आई हैव 2 बिट्स, सबसे पहले हाँ हाफ सब्ट्रैक्टर देखेंगे, सो सब उसकी सब्ट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे लिखेंगे और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या मिलता है? बोरो मिलता है। सो 0 0 0 1 1 0 0, नो इट्स 1 1। सो 0 में से 0 गया, सब्ट्रैक्शन इज 0, बोरो इज 0। 0 में से 1 नहीं जाता है, तो 1 में से 0 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा और बोरो यहाँ पे 1 आएगा। 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, बोरो कुछ भी नहीं है। 1 में से 1 गया तो ना 0 है ना बोरो है। ठीक है ना, सो ऐसे ही होगा। नाउ फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए के मैप बना लो एक। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर आप के मैप बनाओगे AB, ओके, तो यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या है? सिर्फ जो मिडल वाले 2 बिट्स है ना, वही वहां पे एक है, पहला और लास्ट जो है वो 0 0 ही है, राइट। सब्ट्रैक्शन के लिए यही है हमारे पास। एडर के लिए हमारे पास क्या था? एडर के लिए भी हमारे पास, हाफ एडर के लिए भी हमारे पास सेम ही था। जो मिडल वाले जो 2 बिट्स थे वो 1 1 थे,
पहला और लास्ट वाला जो था वो 0 0 था, मतलब एडर और सब्ट्रैक्टर के लिए दोनों के लिए भी सेम ही फॉर्मूला आएगा, दैट इज सब्ट्रैक्शन विल बी A XOR B. ओके, एंड फॉर बोरो के लिए हमें के मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। बोरो के लिए भी हमें एक 2 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करना पड़ता है। सो बोरो के लिए दिस इज A, दिस इज B, सो 0 0 1 1, 0 0 के लिए बोरो 0 है, 0 1 के लिए बोरो 1 है, बाकी सब जगह पे 0 0 ही है, राइट। सो बोरो आउट के लिए यहाँ पे क्या आएगा, A बार B आएगा। सी दिस इज A बार एंड दिस इज B। सो बोरो आउट के लिए, B आउट के लिए हमारे पास क्या आया, A बार B आया। सो डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस सिर्फ कैरी में और बोरो में है, मतलब वहां पे कैरी A B था, यहाँ पे जो बोरो है वो A बार B है इंस्टेड ऑफ A B, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। नाउ द क्वेश्चन मे बी लाइक I don't know whether in the gate examination this will be asked or not. So derive half subtractor using full subtractor, derive half subtractor using full subtractor, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो हाउ कैन वी डू दिस। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे बोरो में है, राइट। लेकिन हमें वही सर्किट यूज करना है, कौन सा, हाफ एडर का सर्किट यूज करना है, और उसकी मदद से हमें हाफ सब्ट्रैक्टर का, हाफ एडर का सर्किट यूज करके हाफ सब्ट्रैक्टर हमें डिराइव करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हाफ हाफ एडर का सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सऑर गेट था, और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट था वो था ए एक्सऑर बी, और यहाँ पे जो इनपुट है वो भी है ए बी। सो दिस वुड बी सेम। अगेन वी हैड one AND gate here, and lastly this is AB. okay, so ये सर्किट जो है वो है हाफ एडर का। अभी इसकी मदद से हमें फुल सब्ट्रैक्टर, सॉरी हाफ सब्ट्रैक्टर डिराइव करना है, ये हाफ एडर का सर्किट है। सो कैसे कर सकते हैं, सो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे दो बबल्स ले लेता हूँ, ठीक है। सो लेट अस सपोज दिस इज, देयर इज वन बबल हियर, वन बबल हियर, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए आया, इस बबल की वजह से वो ए बार बना, और इस बबल की वजह से वो फिर से ए बना, ठीक है। एंड दिस दिस इज ऑर गेट, मतलब यहाँ पे एक्सऑर गेट के इनपुट में ए बी ही मिल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ दो बबल ले लिए, ठीक है। सो इस बबल को मैं भेज देता हूँ यहाँ पे, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। आपको ये प्रॉपर्टी पता है या फिर नहीं पता, मुझे नहीं पता, सो लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू, अगर एक्सऑर के एक इनपुट पे अगर इन्वर्टेड इनपुट है या फिर बबल है, सो बबल का काम क्या होता है, बेसिकली इट एक्ट्स एज अ नॉट गेट, ओके। सो उसको हम अगर आउटपुट पे शिफ्ट कर देते हैं तो इट डजंट मैटर, आउटपुट इज सेम, आउटपुट चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस वाले बबल को मैंने राइट साइड में, गेट के राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, और जो लेफ्ट वाला बबल है वो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता, ठीक है। सी नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, ये जो बबल है ये मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता, सी। तो इस बबल का एक बन जाएगा नॉट गेट, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है एक्सऑर गेट, और फिर से यहाँ पे भी एक नॉट गेट आएगा इस बबल की वजह से, और ये बन गया ए एक्सऑर बी। दिस विल नॉट चेंज रिजल्ट, बिकॉज हमने यहाँ पे इनपुट पे भी एक बबल ऐड कर दिया है, आउटपुट पे भी एक बबल या फिर नॉट गेट ऐड कर दिया है, सो दिस विल नॉट चेंज इट्स रिजल्ट। तो बी तो वैसा ही है, बी में तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं है। लेकिन नाउ इफ यू सी, मैं यहां से जब ये ले रहा हूं ना, सी, सो दिस विल बिकम ए बार बी, दिस विल बिकम ए बार बी। लेकिन अगर आप देखोगे, सो दिस कंप्लीट सर्किट इज, दिस कंप्लीट सर्किट इज अ हाफ एडर, दिस इज अ हाफ एडर। तो हाफ एडर के अगर इनपुट में एक आप नॉट गेट लगा दोगे, आउटपुट में एक अगर नॉट गेट लगा दोगे, सो दैट विल बिकम अ हाफ सब्ट्रैक्टर। सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव हाफ सब्ट्रैक्टर बाय यूजिंग हाफ एडर। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहूं
तो मैं इसे सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ कि एक नॉट गेट इनपुट पे है और बीच में हमारा हाफ एडर का सर्किट है, आउटपुट पे भी हमारा एक नॉट गेट है और बी तो सेम ही है, राइट। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सम और सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज कैरी और बोरो, ठीक है। सो इस तरीके से ए एक्स और बी आएगा और ये ए बार बी आएगा। आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। आई नो कि आपको कंफ्यूजन कहाँ पे रहेगा, आपको कंफ्यूजन रहेगा सर हाउ डिड वी ट्रांसफर दैट बबल टू द आउटपुट ऑफ एक्स और गेट, वही क्वेश्चन रहेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। फॉर नाउ जस्ट कंसिडर दैट दिस कैन बी डन। अभी इस पे जो डिटेल्स है सारे कि कौन से गेट को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्चुअली आई शुड हैव टेकन दैट बिफोर दिस टॉपिक, मतलब उसको मैंने इससे पहले लेना चाहिए था, लेकिन आई डेंट, मतलब मुझे वो समझ में ही नहीं आया। ओके, सो नो मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हाउ कैन वी प्ले विद द गेट्स, मतलब किसी गेट को दूसरे गेट में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, या फिर किस गेट की क्या प्रॉपर्टी है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गेट एग्जाम में उसका फायदा होता है। सो आई विल टेक दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो यू कैन जस्ट कंसिडर कि ऐसा हो सकता है। ओके, सो फुल सबट्रैक्टर इज अगेन सेम गाइस। फुल सबट्रैक्टर में भी हमें कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है, लाइक सिर्फ तुम्हें एक क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन इन योर माइंड वुड बी कि सर a माइनस बी माइनस सी कैसे करें, मतलब a में से b निकालना है और उसमें से c निकालना है। सो यू कैन जस्ट राइट इट लाइक a और इसको लिखिए b प्लस सी, मतलब b प्लस सी करना है, उसे a में से माइनस करना है। सो नाउ a b c में यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0। After that, what we have 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1, I guess, right? So यहाँ पे रहेगा हमारा सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे रहेगा हमारा बोरो आउट। तो क्या करना है हमें, b प्लस सी करना है और उसे a में से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो दैट्स इट। सो b प्लस सी यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस 0 0 ही होगा। a में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्शन भी 0 आएगा, बोरो भी 0 आएगा। b प्लस सी, दैट इज 0 प्लस 1 इज 1, 0 माइनस 1 इज सब्ट्रैक्शन, तो 1 आएगी, बोरो भी 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही आएगा। सिमिलरली अभी देखो 1 प्लस 1 क्या होता है, 0 होता है, राइट। 1 प्लस 1 इज 0, सो 0 माइनस 0, या इट शुड बी 1 एंड borrow should be again 1. Okay, after that we have b plus c, that is 0 plus 0 is 0 and 1 minus 0 is 1 only, borrow यहाँ पे नहीं आएगा। 0 plus 1 is 1, 1 minus 1 is 0, ना सब्ट्रैक्शन आएगा ना बोरो आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ना सब्ट्रैक्शन आएगा ना बोरो आएगा। यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन का भी 1 आएगा और बोरो का भी 1 आएगा। So similarly for subtraction you can do one K-map, for borrow you can do another K-map. Guys, just give me a second. I think I need to put my laptop for charging. Okay, just few seconds. Okay, I've done that. All right. So जैसा कि हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर जो है, हाफ सब्ट्रैक्टर हमारा फुल सब्ट्रैक्टर के इक्विवेलेंट ही था, उसी तरीके से फुल सब्ट्रैक्टर भी जो है वो फुल एडर के इक्विवेलेंट ही है। तो सब्ट्रैक्शन अगेन आएगी a XOR b XOR c, और जो हमारा बोरो आउट है, बोरो आउट हमारा आएगा a बार b प्लस a बार c प्लस बी सी, मतलब सिर्फ a जो है वो a में ही हमारे यहाँ पे एक बार आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ इट अगेन। आई होप दिस वाज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। नाउ अभी फिर से हमें हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक प्लीज ड्रॉ फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग हाफ एडर। अभी फुल सब्ट्रैक्टर को हमें ड्रॉ करना है बाय यूजिंग हाफ एडर, तो इसमें भी सेम लॉजिक। अभी हम फुल एडर को किस तरीके से ड्रॉ करते थे बाय यूजिंग हाफ एडर,
So let me just draw that. देखो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं फुल एडर बाय यूजिंग हाफ एडर. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक हाफ एडर था और इसका एक टर्मिनल यहाँ पे दूसरे हाफ एडर को चला जाता था और यहाँ पे हमें एक मिलता था, ये तो कैरी था, ये तो यहाँ पे ये था ए, दिस इज बी एंड दिस वाज सी. और यहाँ से जो आता था तो इसको हम क्या करते थे, और करके हमारा कैरी मिलता था सी आउट. राइट, तो ये हमारा था फुल एडर बाय यूजिंग हाफ एडर. तो हमने जब हाफ एडर से हाफ सब्ट्रैक्टर ड्रॉ किया तो उसमें क्या किया, हमने सिर्फ इनपुट पे एक नॉट गेट ऐड किया, आउटपुट पे एक नॉट गेट ऐड किया. राइट, सो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें एक इनपुट पे नॉट गेट ऐड कर दो ए पे और आउटपुट पे भी एक नॉट गेट ऐड कर दो. सो दिस इज योर फुल सब्ट्रैक्टर using half adder. Okay, so this is how you can draw it. Again we have parallel subtractor, मतलब हमें जब 4 बीट्स को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सिमिलर मेथड, मतलब इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है. हाफ सब्ट्रैक्टर यूज करना है एक, फुल सब्ट्रैक्टर्स यूज करने हैं 3. सो इस तरीके से हम फुल सब्ट्रैक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर पैरेलल सब्ट्रैक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम यहाँ पे लेंगे, डिटेल्स में जो है वो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे. ओके, so multiplexer is basically, guys, multiplexer have multiple inputs and one output. So let us suppose this is a circuit and it has multiple inputs. Okay, and it has a thing called select lines and it has only one output, that is y. So this is our output, these are our inputs and these are select lines. So इसका एक रेशो होता है, इसका रेशो होता है 2:n. मतलब अगर n सेलेक्ट लाइंस है तो 2:n इनपुट्स रहेंगे. लेट अस सपोज हमारे पास सेलेक्ट लाइंस है 2, सो 2:2, तो 2:2 आएगा 4, तो 4 इनपुट्स रहेंगी. लेट अस सपोज वी हैव सेलेक्ट लाइंस 3, सो 2:3 यानी कि हमारे पास 8 इनपुट्स रहेंगी यहाँ पे और आउटपुट जो है वो तो एक ही रहेगा. सो दिस इज मल्टीप्लेक्सर. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, 2:n इनपुट्स रहते हैं, n जो है वो सेलेक्ट लाइन से. सो इस मल्टीप्लेक्सर की मदद से हम वी कैन ड्रॉ ईच एंड एवरी गेट, मतलब हर एक गेट हम ड्रॉ कर सकते हैं, एंड गेट, और गेट, एक्स और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, सब कुछ वी कैन ड्रॉ everything, anything, इससे कुछ भी कर सकते हैं. So what we will do is in the next class we will try to draw few of the gates by using multiplexer. We will see different types of examples of multiplexer and I will give you few things to do at home. मतलब आपको कुछ गेट्स जो है वो घर पर भी ड्रॉ करके देखने हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है. ओके, सो दैट इज बीइंग सेड. अभी टेल मी वन थिंग एवरीबॉडी, इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू अटेंड द लेक्चर टुमारो एज वेल, क्योंकि टुमारो तो कोई असाइनमेंट नहीं रहेगा, इज इट? सो कैन वी हैव अ लेक्चर टुमारो? Somebody wanted to say something? Yeah. Okay. Raman is saying yes. Shardul is saying yes. And I hope Arjun is also with us only. Okay. Yeah, no issues. Okay. So if there is an issue, you can drop me a WhatsApp text. I think that's it for today. Enjoy your holidays, Diwali, whatever it is. And bye bye. See you tomorrow. Good night. You can leave the class, guys. Yeah, no problem. Thank you. Thank you. Bye bye. Good night.